Also, Gurneet, is the recording and all working properly? All right, so we are live. Perfect. So, welcome everybody. Welcome to the Explore ML event presented to you by GDSC, the Google Developer Student Club of our college, Guru Tegh Bahadur Institute of Technology. All of us are really happy that more than 40 students have joined the event, and all this support means a lot to us today. And more students are joining as we speak. So, that is absolutely amazing. My name is Kanish Khurana. I am pursuing my BTech in Information Technology, and I'm currently in my second year. We have two more speakers today for the event, and the first of them is Mamata Pal. Mamata, why don't you go ahead and introduce yourself to the members? Yes, sure. Thank you, Kanishk. Hello. Am I audible? Yes, you are absolutely audible. Okay, so I'm doing computer vision in engineering intern at Artinal, that is Canada-based startup, and also doing data science intern at IITM Pune, that is meteorological department and government also. And basically, I'm enthusiast for robotics also. So that I'm also a founder of Women in Robotics Delhi. Yes, that's all. Sai Preet, please tell about yourself. Yes, thank you. Hello everyone. I am Saipreet Singh, pursuing my BTech in AML branch. It's new this year, but like everyone knows AML and ML is the future itself, and like we have no metaverse is coming, and this is the world in itself. This maximum part of metaverse is ML based only. So this is what we know about it. Thank you. Absolutely amazing. So, with all the members ready and all the participants also ready, let us dive straight into everything that we'll be covering today. And in general, what all we will be covering in this series of sessions that we have planned. Uh, Throughout the event, अगर आप में से किसी को भी कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो या इन जनरल कोई क्वेश्चन हो कि भैया मेरे को पाइथन में इंटरेस्ट है या फिर मुझे मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट है, हाउ विल दिस बेनिफिट मी और व्हाट ऑल शुड आई डू, व्हाट ऑल शुड आई नो. So you can put your questions in the chat. You can even unmute and respectively just talk about that. And we are here to solve all your questions and doubts. So without any further ado, let me present my screen and show you some important things that we want to talk about before we go towards the coding part of today's session. Let me quickly present my screen. Please let me know when it is visible. Oh, and soon in the chat, a form will also be shared. To fill this form, all you have to do is, enter your details and all, and you will receive a certificate for attending this as well. So anyway, is my screen visible? Yes. Awesome. Let us get started. So top data science jobs. First of all, in machine learning, there are a lot of variables that one may consider. So हम as a machine learning engineer बहुत कुछ कर सकते हैं with our skills, with our knowledge. हम डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, हम डेटा आर्किटेक्ट बन सकते हैं, हम डेटा इंजीनियर बन सकते हैं. And all of them, they stem out. वो शुरू एक ही चीज से होते हैं, which is your basics of machine learning, basics of Python, and a little bit of math as well. काफी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जिनसे मेरी बात हुई थी आज, एंड दे वर वेरी स्केर्ड कि भैया मैथ्स इतनी स्ट्रांग नहीं है हमारी, क्या हम मशीन लर्निंग परस्यू कर पाएंगे. एंड ऑनेस्टली ये क्वेश्चन मेरे दिल के बहुत पास है, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड मशीन लर्निंग अबाउट 2 years ago, आई हैड द सेम डाउट. यार स्टैट्स तो मेरा बहुत वीक है, and what should I do? How should I pursue it? So I would like to invite Momita, because I feel that she also has a lot of experience dealing with maths and machine learning एक साथ. So Momita, why don't you take up this question कि maths कितनी important है एक machine learning engineer के लिए? ठीक है, तो अगर डेटा साइंटिस्ट बनना है, डेटा साइंस की बात है, तो ऑब्वियसली यू मस्ट नो मैथमेटिक्स, बिकॉज उसी के बेस पर तुम पूरा जो भी एनालाइज करना है, जो भी तुम्हें प्रेडिक्ट करना है, वो सब उसी के बेस पर हो सकता है. ठीक है, जैसे अगर तुम्हें आई मीन ML is different than data scientist, because ML is all about prediction, but data scientist is all about you have to calculate some values in numeric forms.
Okay, so there is lots of things we have to do for in maths. So for data scientists, it is important that you must know what is what is to do in that thing. Okay, so there is lots of things. जब हम ML start करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे myths होते हैं कि like मैं ये कर लेता हूँ data scientist, data science भी कर लेता हूँ, मैं ML भी कर लेता हूँ और मुझे समझ भी सब आएगा. बट ऐसा नहीं होता. मुझे डेटा फॉर माय एक्सपीरियंस, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है डेटा साइंटिस्ट में. बट फॉर एआई, अगर मैं एआई की बात करूँ तो उसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं. अगर तुम मशीन लर्निंग की बात करो या डीप लर्निंग की बात करो या डेटा साइंटिस्ट की बात करो, तो तुम्हें पहले एक्सप्लोर करना होगा कि किस चीज में क्या है. अगर डेटा साइंटिस्ट बनना है तो यू मस्ट नो प्रोबेबिलिटी, इंटीग्रेशन. ओके, यू मस्ट नो दैट स्टैटिस्टिक. अगर वो तुम्हारा क्लियर रहेगा तो तुम obviously just pursue that data scientist. Okay, and if you want to being in machine learning, I know this is important to know mathematics, but there is some chances like if you are weak, but you can start with machine learning engineering. Okay, and if I'm talking about me, so I'm right now I am focusing on AI. Okay, so in AI, I am also doing machine learning and deep learning. Deep learning is a subset of machine learning. Okay, so there is a thing like you have to know what you are doing. अगर तुम डीप लर्निंग में जा रहे हो, अगर तुम मशीन लर्निंग करना चाहते हो, तो यू मस्ट नो कि वो है क्या, उसके बाद उसमें आगे बढ़ा जाए. ओके, और फ्यूचर स्कोप, if I'm saying about future scope, so there is also myths like when I started machine learning, so there was myths like masters के बाद ही तुम्हें जॉब मिलती है और इंटर्नशिप्स भी बहुत मुश्किल होती हैं, बहुत मुश्किल होता है इसको आगे बढ़ाना. ऐसा नहीं होता. ऐसा तब होता है जब तुम्हें किसी चीज का नहीं पता होता. अगर लाइक रोबोटिक्स की मैं बात कर रही हूँ, रोबोटिक्स इज ऑल अबाउट एआई. एआई बहुत छोटी चीज नहीं है, बड़ी चीज है. मास्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम मास्टर्स करो. बट अगर तुम्हें मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है या डेटा साइंटिस्ट बनना है तो तुम वो बैचलर के बाद भी बन सकते हो. देयर इज नथिंग अबाउट कि तुम्हें मास्टर्स करना जरूरी है. ओके, आगे Absolutely. Yes, yes. So I think आपने काफी डिटेल में सारी चीजों को कवर किया कि डेटा साइंटिस्ट क्या होता है, डेटा आर्किटेक्ट क्या होता है. सो हमारी जो फील्ड है मशीन लर्निंग और डेटा इंजीनियरिंग इन जनरल, इट डील्स अ लॉट विद डेटा. एंड डेटा को समझने के लिए यू मस्ट नो अ लिटिल बिट ऑफ मैथ. अब आपके पास 1000 वैल्यूज हैं, बट उनका मीनिंग क्या है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू, वो डेटा कैसे जा रहा है, ओनली मैथ्स कैन हेल्प विद दैट. बट when I say maths, मैं ये नहीं कहना चाहता कि पूरे दिन बैठ के you have to study mathematics and you have to become a pro, do all the books, go back to R.D. Sharma and all that. No. You need to simply know basic formulas of mean, median, mode and all of that. And that is a very good place to start. Because बाकी जो आपका डेटा आपको गाइड करेगा, you will keep learning things on the job. But don't worry about maths and all at this point. At this point, किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है कि भैया हमने ये शुरू किया था या फिर हम इस चीज पे काम कर रहे थे, हाउ शुड वी गो अबाउट इट नाउ दैट वी टॉक अबाउट मैथ्स? ऑलराइट, इन केस आपको कोई डाउट आया एंड यू फील हेजिटेंट टू स्पीक, आज आप चैट में भी लिख सकते हैं. वी विल एड्रेस ऑल द डाउट्स विद फुल सपोर्ट एंड कंपैशन. ओके, कनिष्क, मैं ओके, सो जब तुम स्टार्ट करते हो मशीन लर्निंग या डेटा साइंटिस्ट होना, तो देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स यू वांट टू नो. Because it's like there's not lots of people कि जो तुम्हें इस चीज को गाइड कर सके. तो अगर अभी भी कोई डाउट है इसको लेकर कि फ्यूचर में हम इसमें आगे कैसे बढ़ सकते हैं, तो वो अभी तुम पूछ लो, कनिष्क will be answer. Okay? Absolutely. All right. Now we've talked a lot about different चीजें जो एक machine learning engineer या एक data scientist कर सकता है. Let's move forward and actually talk about the market. कि भाई हम सीख लेंगे, पर world का status क्या है? So moving forward, let's go to the next slide, and here you can see there is 65%. Let's see. Can you provide a roadmap? Like how should we start with maths? Very, very good question, Bhumika. Thank you so much for bringing this up. We will present a roadmap very, very shortly in this session only. We have a slide ready for that.
एंड हम बस एक रोड मैप नहीं देंगे आपको, वी विल ऑल्सो टेल यू वेबसाइट्स विद प्रॉपर लिंक्स जहां से आपको सर्टिफिकेट्स मिल सकते हैं फॉर वट एवर हार्ड वर्क दैट यू विल डू. सो स्टे ट्यून, विद इन 5 to 10 minutes हम उस पॉइंट पे आ ही जाएंगे. And thank you so much for bringing this question. We really appreciate all the participation. So coming back to this slide that I have for you, as you can see, 117.2 billion का global market size है. इसका मतलब companies are very very interested in artificial intelligence, in machine learning, and everybody wants to get into this field so that their job performance, their company performance in general can improve, right? Why did YouTube introduce machine learning into their recommendation system? And why did Spotify provide you so many recommendations on a daily? Because it's good for their economy, and you also get to see engaging content daily, right? How do they do it? With the help of machine learning engineers, right? Netflix has a recommendation model. I think uska naam hai conditional formatting, conditional filtering, something like that. And it's absolutely amazing. So जब आपका मॉडल कोई चीज प्रिडिक्ट कर पाता है एट अ वेरी गुड एक्यूरेसी, एंड आप अपने मॉडल को एक्सप्लेन कर पाते हो अच्छे से, that is when you can say that yes, I am on the right track to becoming a good machine learning engineer. This is specifically for students who have a lot of interest. Collaborative filtering, there we go. Very very good, Kumar Kapoor, very very good. So collaborative filtering is what all these recommendation systems use these days. It's a very very good model, and हमारे पास आगे जाके मॉड्यूल्स भी हैं आपके लिए जिसके अंदर आप इन डिफरेंट एल्गोरिथम्स को फ्रॉम अ वेरी बेसिक टू अ वेरी एडवांस लेवल समझ सकते हैं, एंड हम उस पर भी अभी बहुत जल्दी आने वाले हैं. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. वी हैव सीन अ लॉट ऑफ नंबर्स हियर, एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ. Okay, demand for data scientists exceeds data scientists. I would say कि not really. These are very very different kind of fields. एक data scientist data के साथ अलग तरीके से काम करता है, and data engineer उस data के साथ अलग तरीके से काम करता है. The engineer may or may not have to build models. He may or may not have to go into machine learning roles. A scientist may only study the models. So फर्क आ जाता है. But शुरू करने के लिए I would say कि इन बड़े बड़े नाम में हमें नहीं जाना है. हमें अपने बेसिक्स को ग्रैब करके रखना है. हमें पाइथन ठीक से करनी है, हमें डेटा विजुअलाइजेशन ठीक से करनी है, एंड दैट ऑल विल आल्सो बी कवर्ड टुडे. ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड. So average salaries, many students are interested. Almost, okay, let's see. Prabhu Aditya has okay, see, almost all MNCs wants masters in ML or DS. What should we do if we are not a core branch engineer, as I am from AI or ML? Well, like Momita mentioned a couple of minutes ago, that your skills in today's industry, they matter a lot more than your degree. Your degree is obviously very very important, but if your skills are also there to support your degree, then you become this packet of power that no company will ever say no to, right? You can see all these what do you call it, all these numbers showing you the salaries that data analytics and data scientists, data engineers, they get. तो अगर आप AI ML से भी हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके साथ कोई डिस्पैरिटी होने वाली है इन दी इंडस्ट्री. आप अपने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाइए, अच्छी अच्छी चीजों पे काम कीजिए, जो हम अभी दिखाने वाले हैं आपको बहुत जल्दी when we go to Kaggle today itself, and then you will be able to see your master's degree is important, but you can, being on the BTech level as well and being from AI ML as well, you can grab a very very good machine learning internship. I hope I was able to answer your question, Prabhuth. If there is anything I missed, please let me know. I will reiterate my points. आप unmute करके भी बात कर सकते हैं. बस chat पे लिखना is not sort of a rule. You can unmute and talk as well. Fine. Okay. Great. Let's move ahead now. So a lot of, you see, this is in lakh rupees. So 120 lakh rupees, and then this possibly goes into crores. And the source is obviously India Today, so that is a legitimate source, right? Let's move forward now. With your years of experience, your salary obviously increases. But entry level ke liye bhi, if you have a good number of projects, good knowledge, nobody will say no to you. So let's move forward. All right. High salary growth, as we mentioned. Now comes the point that Prabhu was asking about. So many startups are coming into this industry. आप आज भी LinkedIn पे अगर जाएंगे, आप किसी जॉब सर्चिंग वेबसाइट पे जाएंगे, एंड आप वहाँ पे मशीन लर्निंग डालेंगे, you'll see कितनी सारी कंपनीज, they are just mad for machine learning engineers because उनको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, and machine learning is the way to get to it, right? So as you can see, 650% hike since 2012. There is no other industry at this point that can compare to 650% of a hike, right? Then 37% people, they transition towards data analytics as well. Many people who, for example, अगर आपके friends हैं, right? They are from a data
what do you call it, data analytics background, where they do a lot of work on Microsoft Excel, or they work just a lot with data and all that. And if they want a growth in their career as well, they can quickly cover a lot of coding concepts that we'll be introducing to you today. And they can also transition into this. So let's move forward. Salary hikes, as you know, 44% tak ja sakti hai. So crazy industry right now, which is why we have brought this program to help all the students of GTVIT. All right. Now, what is ML Study Jam? अब आती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की, ठीक है, अब आपने भैया हमें मार्केट के बारे में बता दिया, आपने हमें ये बता दिया कि हाइक कितनी आने वाली है, आपने बता दिया कि चलो हम बीटेक लेवल पे भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, डज नॉट मैटर कि हमें मास्टर्स तक जाना है या नहीं जाना, वो हमारी पर्सनल चॉइस है, ठीक है. सो नाउ कमिंग टू व्हाट ऑल डू वी हैव फॉर यू. फर्स्ट, एज यू कैन सी, 6 weeks self-paced learning. This is week 1 going on right now, and the links and all that we'll be giving you, you can obviously do them through the weekend. That is completely based on you. आपको जब टाइम मिले आप उनको कर सकते हैं, and we'll come to that within 5 minutes. That is my promise. I know मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ, and people are people are answering and all as well, so we really appreciate that. Then hands-on assignments मिलेंगे. So every course that you will do, be it on Python, Pandas, Matplotlib, anything, there will be some sort of project, some sort of assignment basically that जो आप उस पे कर रहे होगे, and उन सब के basis पे आपको certificates भी मिलेंगे right from Google. Okay, so उन certificates की obviously बहुत value है, because that's a proof कि यार मैंने मेहनत करी थी, and this is what I made and this is my proof. So now I think that we've talked about Kaggle. That is a very, this is the same thing that we are your facilitators. We will be guiding you towards how to become a proper machine learning engineer. You will be upskilling yourself, getting badges and certifications. And with this said, now it's time that we get into Kaggle. So Mamita, why don't you take the session forward and guide all the students on the best platform to learn machine learning today. Yes. Okay, so you all I mean किसी भी टाइम तुम लोगों ने Kaggle पर काम किया होगा. Can you raise your hands? Are there any students जिन्होंने कभी Kaggle पे का नाम भी सुना है, कभी उसको ओपन करके देखा, कभी एक्सप्लोर किया? Anybody? Just आप चैट में 1 लिख सकते हो या फिर मी लिख सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल. और किस चीज के लिए यूज किया ये भी बता सकते हो, अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो Kaggle से रिलेटेड. एनीवन? माइक भी ओपन करके तुम बोल सकते हो. Okay, so Sahil says no, Kuvar says yes. Kuvar, why don't you unmute your mic? We would love to talk to you. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपने कैसे स्टार्ट किया? Yeah, I'm audible, right? Yes, you are audible. Yeah. So yeah, I've been in machine learning space for over 2 years, and yeah, I've used Kaggle a lot times. Starting middle, even I was just using Kaggle for data sets only, like gathering the data sets and all the information and all that, stuff, basic stuff. But then my friend told me to use Kaggle as a competition space, learning more about what other people are using, like algorithms and all that. So Kaggle helped me initially in my journey with the data sets part, but now it's been helping me with the like competition parts and so good notebooks you can find on that platform that you can learn a lot from them. So yeah, Kaggle has been a lot of help for me. Okay, so Kuvar has told you about like what is his experience. So now I will share my screen and just give you some brief for that. Okay. जब तक आप present कर रहे हैं, I would like to really thank Kuvar for stepping up, sharing his experience means a lot to us. And जैसा कुंवर ने mention किया कि आपको Kaggle से data sets मिल जाते हैं. डेटा सेट्स क्या होते हैं हम अभी कवर करने वाले हैं. आपको Kaggle से काफी सारे नोटबुक्स के ऊपर भी कमांड मिल जाता है, वो भी हम कवर करने वाले हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेपिंग अप कुंवर. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम आपसे कुछ बता रहे हैं, यू वांट टू जस्ट ऐड ऑन समथिंग टू इट और यू वांट टू आस्क समथिंग, प्लीज फील फ्री टू अनम्यूट योर माइक एंड स्टार्ट स्पीकिंग. वी वुड लव दैट. Great.
So Mamita, Yes. let's move forward. ओके सो अभी जैसा कि कुंवर ने कैगल के बारे में बताया, तो कैगल इज द प्लेटफॉर्म जहां तुम अपने डेटा साइंस और एमएल के स्किल्स को ज्यादा बढ़ा सकते हो. जैसे उसने डेटा सेट पहले एवरीवन सबसे पहले हम डेटा सेट जब भी उठाने की बात होती है तो हम कहते हैं कैगल ओपन कर लो, वहां से उठा लो, क्योंकि वहां वर्ल्ड वाइड डेटा सेट हमें मिल जाता है. ठीक है, और लार्ज अमाउंट में मिल जाता है. और टाइप ऑफ डेटा सेट लाइक अगर मुझे सीएसवी में चाहिए, अगर मुझे एक्सएमएल में चाहिए, अगर मुझे किसी भी फॉर्म में डेटा सेट चाहिए, तो वो सारी चीज मुझे कैगल पे आराम से मिल जाती है. ओके, तो आते हैं इस पॉइंट पर. कैगल इज ओन्ड बाय गूगल. ओके, रिसेंटली ओन्ड बाय गूगल. एंड दिस इज अ प्लेटफॉर्म जहां तुम सब कुछ कर सकते हो एज एन डेटा साइंटिस्ट और एमएल इंजीनियर. So, as you can see, there is 4 things you can see: courses, competition, data set, code, and discussion. Okay, so first I would like to लैंड ऑन कॉम्पिटिशन्स. ओके, जब हम स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज को, तो हमारा डिफरेंट लेवल्स होता है कि पहले मैं स्टार्ट बिगनर से करूं, देन मैं उसके बाद उससे हायर एडवांस लेवल पर जाऊं, उसके बाद मैं हायर लेवल पर जाऊं. तो यहाँ पे इसी तरीके से कॉम्पिटिशन्स तुम अपने लेवल के हिसाब से परस्यू कर सकते हो. तुम्हें उसका सर्टिफिकेट भी मिलता है. एंड एनीथिंग यू वांट टू डू, यहाँ कंपटीशन से तुम अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हो. तुम्हें जितना अपने आप को चेक करना है, जितना अपने आप को आगे बढ़ाना है, तुम वो सब कर सकते हो. ओके, सो नेक्स्ट, जैसा कि कुंवर ने कहा कि स्टार्टिंग में उसने डेटा सेट्स उठाए थे यहाँ से. तो यहाँ पे मुझे हर टाइप के डेटा सेट मिल जाते हैं. सॉरी फॉर इंटरप्ट, मेरा लैपटॉप थोड़ा हैंग हो गया है. No Am I problem. audible? Yes, you are audible. आपका, I think, is it working fine now? Wait. Okay, while she's fixing on that, Yes, I just yes, want yes. to reiterate something. Yes, काफी yes, students, yes. Okay. yes, काफी students ने आज जब हम classes में आ रहे थे, we were talking to students, काफियों ने ये बोला था कि भैया जैसे हम practice कर लेते हैं, कोडिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं. दिस इज फॉर सेकंड एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स एज वेल, कि भैया हमने प्रैक्टिस कर लिया, हमने जीएफजी खोल लिया, हमने काफी सारे और रिसोर्सेज यूज कर लिए, जैसे लीड कोड हो गया, जहाँ पे हम एसडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं. सेम तरीके से यू कैन कम टू कैगल एज वेल. दिस इज वेयर ऑल द मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, दे वर्क हार्ड, दे लर्न स्किल्स एंड दे improve themselves. So this is the platform that I did not tell you when we were coming to your classes and talking about stuff, that where should we practice. Here it is. So over to you, Mamita. ओके, सो डेटा सेट मुझे यहाँ पे किसी भी टाइप के मिल जाते हैं. अगर मुझे आई मीन जिस भी तरीके का काम करना है, अगर मुझे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करना है, अगर मुझे प्रेडिक्शन करना है, तो उस टाइप के मुझे यहाँ पे डेटा सेट जज करके मिल जाते हैं. और जैसा कि यहाँ पे साइन इन एंड रजिस्टर है, तो यहाँ पे तुम्हारी अपनी खुद की प्रोफाइल बन जाती है. तो जो भी तुम डेटा सेट उठाते हो वो तुम्हारी प्रोफाइल में शो होने लग जाती है, कि अगर बाय चांस यू नीड इट फॉर नेक्स्ट टाइम, तो तुम यहाँ से ले सकते हो डेटा सेट. यहाँ पे तुम अपना न्यू डेटा सेट मतलब आई मीन एक्सप्लोर कर सकते हो. अपना जो भी डेटा सेट है उसको यहाँ अपलोड कर सकते हो. एंड देन कम्स टू कोडिंग पार्ट. Kanishk? Absolutely. So for the coding part, before we get into coding part, एक काम करते हैं, let's show these students कि हम किन किन courses को touch करने वाले हैं, ताकि over the weekend अगर आपके पास free time हो और आपको पढ़ना हो machine learning के बारे में, you want to get started, तो कहाँ से करें. We have 2 courses right now. Well, we have a lot of courses, but first 2 courses that we want students to get started with is Intro to Python and Intro to Machine Learning. Mamita, do you have those open right now? Yes. Okay. So I'm. There we go. Okay. So यहाँ पे बेसिकली हमें 2 कोर्स करने हैं. अगर ML स्टडी जैम्स की तरफ से देखा जाए, इससे हमें सर्टिफिकेट भी मिलता है और ये फ्री प्लेटफॉर्म भी है. बट अगर तुम्हें मशीन लर्निंग डेटा साइंटिस्ट फ्रॉम बिगनर बनना है, तो तुम यहाँ से पहले पाइथन को एक्सप्लोर करो, देन मशीन लर्निंग के इंट्रो पर आओ, देन तुम पांडास को एक्सप्लोर करो. देन ये एक पूरा तुम्हारा पाथ बन जाएगा कि हाउ यू कैन बीइंग ML इंजीनियर और डेटा साइंस इंजीनियर.
Okay. Absolutely. जैसे So sorry to interrupt, but one of the students, here it is. Bhumika Rana once asked us that a few minutes ago that Bhaiya, can you provide us some sort of roadmap? So Bhumika, here you go. This is the easiest roadmap that anybody can provide you. आप पहले Python शुरू करो, then आप machine learning शुरू करो, and then slowly आप engineering की तरफ जा सकते हो. I hope we were able to sufficiently answer your question. Let's do one thing, Mamita. एक बार ना एक Python वाला course खोल के दिखाते हैं. Let's just introduce them कि how do you actually get started with this? okay, so before this I want to tell you कि जब हम start करते हैं, एक second यार. Okay, so it's just ठीक है. तो पाइथन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. अगर हमें मशीन लर्निंग करनी है तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पाइथन से मशीन लर्निंग कर सकती हूँ, मैं किसी और चीज से भी कर सकती हूँ. अगर मुझे एआई में आना है, एमएल में आना है, देयर इज नथिंग कि मुझे पाइथन ही करनी पड़ेगी. बट पाइथन हैज लॉट्स ऑफ लाइब्रेरीज जो मुझे बहुत आसानी से इजीली हेल्प करती है ताकि मैं मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स को बना सकूं, मॉडल्स को तैयार कर सकूं. तो यहाँ पे you have to first begin the course. Okay, there is 5 hours to go. It's on your I mean especially like if you know, पहले से ही तुम्हें पता है कि पाइथन क्या होता है, कैसे होता है, I mean प्रिंट का पता है, फंक्शन पता है, तो तुम डायरेक्ट जंप कर सकते हो दूसरी चीजों पर. ओके तो यहाँ पे ये सबसे मेन पॉइंट, ये इंस्ट्रक्टर बेस्ड कोर्सेज हैं जिसमें तुम्हें इंस्ट्रक्टर के बेस पर सारी जो सर्टिफिकेट्स है वो मिलेंगी. ओके, देयर इज नथिंग कि तुमने खुद से कर लिया कोर्सेरा या उडेमी की जैसे कि लाइक खुद से कर लिया, हो गया, मिल गया. नहीं, इट्स लाइक कि तुम्हें इंस्ट्रक्टर भी यहाँ पे प्रोवाइड होता है एंड दैट इज लिटरली बहुत बड़ी और अच्छी बात है. ओके तो जस्ट लैंड ऑन टू द कोडिंग पार्ट. ओके तो कैगल जैसा कि मैंने बताया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. अगर मैं मशीन लर्निंग और डेटा साइंस की बात करी हूँ तो यहाँ पे हम कोडिंग भी कर सकते हैं. जो कोडिंग तुम्हारे पास ऑब्वियसली तुम्हारे प्रोफाइल पर स्टोर रहेगी, जो भी तुमने किया. ऑल्सो यहाँ पे तुम प्री बिल्ड पहले से जो भी हो रखा है वो सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं यहाँ पे. उस तरीके के अगर तुम्हें कोई एल्गोरिथम चाहिए, लाइक रैंडम फॉरेस्ट का चाहिए तो तुम्हें उससे रिलेटेड मिल जाएंगे, और टेंसर फ्लो का चाहिए तो उससे रिलेटेड मिल जाएंगे. अगर बिगनर टाइप चाहिए तो वो मिल जाएगा. एनएलपी के बेस पे अगर तुम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो वो मिल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको जिनसे तुम लर्न कर सकते हो और अपनी खुद की नोटबुक I mean कोडिंग कर सकते हो. So just land on to the new notebook, and I guess I didn't sign in. Wait. But that's okay. So basically जैसे हम जब कोडिंग करते हैं हम अपनी फाइल्स बनाते हैं कंप्यूटर में. आपने जो भी स्टूडेंट्स कोडिंग करते हैं, आई एम श्योर बहुत बच्चे यहाँ पे कोडिंग करते हैं. सो आप अपनी फाइल्स बनाते हैं. मशीन लर्निंग में उस फाइल को कहते हैं नोटबुक, क्योंकि इसी नोटबुक में सेल्स होते हैं. एंड जैसे आपने किसी एक सेल को एग्जीक्यूट करा, उस सेल से कुछ ग्राफ बन के आया, सो वो ग्राफ इसी नोटबुक में जस्ट उस सेल के नीचे आ जाता है. सो इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल नोटबुक बट विद कोड इनसाइड इट. सो दैट बिकम्स बहुत आसान. इट बिकम्स रियली इजी to quickly see कि किस चीज से क्या आउटपुट आ रहा है, and is my data leading me into the right direction, and is everything going fine or not. So that is something that is very important when it comes to ML. All right, now I think she signed in, so let's continue with a little bit of a new notebook. Yes, so here I will introduce you to the basic Python. Okay, so firstly I want to know how much student knows Python already. Is it good to follow the course on Coursera by this Andrew NG? हाँ, बहुत अच्छा है Andrew NG का course, but it's depend on you. Like if you want to pursue for that course, so बहुत अच्छा course है मेरे हिसाब से तो. Andrew NG, as you know, is an engineer from Google, right? So उन्होंने deep learning event किया है. Deep learning is the most important thing if you are going for that.
और इतनी बड़ी चीज का जिसने इन्वेंट किया उसका तो कोर्स अच्छा ही होगा. Absolutely, and he's a very good teacher as well. काफी बार हम इंडस्ट्री में देखते हैं कि जो लोग अच्छे इंजीनियर्स होते हैं वो शायद अच्छे टीचर्स ना बन पाए, but he's a very very good teacher as well. So if you have the time and you want to go inside the theory of machine learning very nicely and clear your concepts, do follow his course. We also highly recommend it. Kaggle is a self-paced learning platform. So the way you will learn here is कि एक at intermediate stage in Python. Okay, so right. So let's do one thing. We are getting into Python today as well. So all the students who have an intermediate level of experience with Python will love this, what we are about to show. Before we do that, yes, Mamita, please continue with the notebook part. Really sorry to interrupt. Yes. ओके सो जब तक ये लोड हो रहा है तब तक मैं कुछ और बता देती हूँ. इसमें बहुत सारी कम्युनिटीज भी हैं जिन पर तुम डिस्कशन कर सकते हो, जिनको तुम फॉलो कर सकते हो. यहाँ पे तुम मशीन लर्निंग और डेटा साइंटिस्ट से जुड़े हुए न्यू लोगों से मिल सकते हो. तो देयर इज द डिस्कशन पार्ट. हैंग हो रहा है. No worries. So as she was talking about communities, right? काफी बार जब हम कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हम कुछ कोड कर रहे हैं, we face problems and उन चीजों का सोल्यूशन हमें शायद रेडिली ना मिले. हम गूगल पे सर्च करें, हमें तब भी शायद ना मिले. क्या यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कभी कोई क्वेश्चन फेस किया कोडिंग के वक्त एंड दे जस्ट कुड नॉट फाइंड द आंसर ऑन गूगल एज वेल? कभी हुआ यहाँ पे किसी के साथ ऐसा? Would anybody like to say, me or something in the chat? So anyway, that is when your community will help you. आप अपना question with the detail and screenshot and all आप add करें. Somebody must help you because that is what communities are for. That is why you form all these groups and learn coding properly, right? So okay, let's see some more questions. Proper answer ना मिले but logic मिल जाता है. Absolutely correct. And काफी बार ऐसा होता है जैसे मीत ने mention किया कि proper answer नहीं मिले but logic मिल जाता है. So उस केस में जो आपके साथ अब collaboratively problem solve कर रहा है, you both get along. And काफी बार ऐसा जैसे how did me and Mamita meet? ऐसे ही हुआ था. We were working on a project and I faced a problem. I put it in the chat. And she was like, यार ये मैंने करा हुआ है, but I also need to spend some time on your project to see actually how to fix it. And that is how communities are formed. And GDSC, as you know, is a global community. And यहाँ पे ऐसा बहुत होता है. This is literally an everyday story for us. All right. I think the notebook is giving you some problems, right? No problem. Let's do one thing. We have a better tool for notebooks that we wanted to introduce. If these notebooks are giving problem, this is a very nice segue to enter into collab notebooks. What do you say? Yes, just start with collab notebook. Yes. So Sahib, are you present? Yes. Let me share my screen. Yes. So many students have been waiting for Sahib to present, and now is the time. So Sahib, take away the stage. He will now be introducing all of us to collab notebooks. Now collab again is a tool by Google, जहाँ पे आप similarly ये notebooks को create कर सकते हैं, अपना सारा data उसमें load कर सकते हैं, and projects को form कर सकते हैं. जो भी आप प्रोजेक्ट्स यहाँ पे फॉर्म करेंगे, जिस तरीके से हम गूगल डॉक्स को शेयर कर लेते हैं आपस में एंड काम कर लेते हैं, ये प्रोजेक्ट्स भी सेम तरीके से शेयर हो सकते हैं, होस्ट हो सकते हैं, एंड आप अपनी इंटरव्यूज में, मीटिंग्स में इनको प्रेजेंट भी कर सकते हैं. सो साहिब, इज इट रेडी? यू आर ऑन म्यूट बडी. 1 minute. Sure. Take your time. In the meanwhile, does anybody have any questions with things that we have discussed so far? In general, आपको machine learning या फिर ML explore के बारे में कुछ पूछना है तो आप वो भी डाल सकते हैं. Let's have a little bit of Q&A round. इसमें प्रोजेक्ट शेयर एडिट होते हैं ना, मतलब ऐसे ग्रुप्स में. जी बिल्कुल मीत, आपने बिल्कुल सही कहा. प्रोजेक्ट्स शेयर आप कर सकते हैं. आप पूरी जैसे आपने आई एम 100% श्योर आपने गूगल डॉक्स यूज किया होगा. दिस इज जस्ट द मशीन लर्निंग वर्जन ऑफ दैट. आप कुछ भी प्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ भी शेयर कर सकते हैं. इनफैक्ट साहिब अब करके भी दिखाएगा आपको. एंड हियर वी गो. दिस इज वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स. So first of all, like मैं तो एक डेमो प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ. देखिए ऐसे हम गूगल ग्राफ यूज कर सकते हैं. इसमें हम टेक्स्ट सेल भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हम साथ जो हमें नोट्स बनाने वो लिख सकते हैं. उसके अलावा हमें कोड सेल भी होता है.
दोनों सेल डिफरेंटली वर्क करते हैं और लाइन बाय लाइन आप पहले इंपोर्ट करा लो जो उनकी भी आपको मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है, कोई भी लाइब्रेरी यूज़ करनी है। एंड उसके बाद नीचे जैसे आप देखो ग्राफ्स बनाए हैं यूजिंग मैटप्लॉटलिब, यहाँ पे डिफरेंट लेबल्स और वो सब। अगर हम डेटा सेट इसमें इंपोर्ट कराना है फ्रॉम द लोकल कंप्यूटर, तो उसके लिए सिंपली हम गूगल ड्राइव पे जाएंगे पहले। उसमें एक फाइल अपलोड, जो भी आप जहाँ पे भी आपका वो होगा डेटा सेट, वहाँ से आप फाइल को अपलोड करोगे। लाइक ये डेटा सेट है मेरा, उसको मैं यहाँ से अपलोड करूँगा ड्राइव पे। उसके बाद अपलोड करने के बाद मैं गूगल क्लाउड खोलूँगा एंड उसमें हम न्यू नोटबुक खोल के पहले हम गूगल क्लाउड नोटबुक को ड्राइव से कनेक्ट करेंगे। 1 सेकेंड। बहुत सिंपल है, नॉर्मल गूगल क्लाउड सर्च करो यहाँ पे, गूगल क्लाउड, यहाँ पे ऐसे नोटबुक आ जाती है। सिंपल न्यू नोटबुक क्रिएट करने का ऑप्शन सिंपल यहाँ से न्यू नोटबुक का यहाँ से आ जाएगा, नहीं तो फाइल न्यू नोटबुक। एंड उसके बाद सिंपली हमें कमांड लिखनी है। कमांड्स एंड ऑल बेसिक पाइथन में लिखनी है, बहुत 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 सिंपल है। लाइक हमें गूगल कोलैब से इंपोर्ट कराना है ड्राइव को। उसके बाद पहले देखो कंट्रोल एंटर या फिर इस बटन से रन होता है यहाँ पे कोड। एंड एक बार ये रन हो जाए, थोड़ा सा स्लो सो चल रहा है। बेसिकली गूगल की अपनी एक लाइब्रेरी है जिसका नाम उन्होंने ड्राइव ही रख दिया है। गूगल कोलैब से हमने ड्राइव नाम की एक फंक्शनैलिटी को बेसिकली डाल दिया अपने फोल्डर में, और अब इसको यूज करके सॉरी, आई फॉरगॉट द डॉट बिटवीन दैट। सिंटैक्स एरर, ये तो हर प्रोग्रामर के साथ होता है, नो वरीज। फ्रॉम गूगल क्लाब हम ड्राइव इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें ड्राइव डॉट, ये तो नॉर्मल सी एक लाइन है जो याद ही करनी है, इसमें तो कुछ है नहीं। सिंपली ऐसे आप जब ड्राइवर माउंट करोगे तो यहाँ पे परमिशन मांगेगा, उसे कनेक्ट करना है गूगल क्लाब को ड्राइव से। तो उनसे भी आपका अकाउंट आपको यूज करना है, उसके लिए करना है। और मेक श्योर कि आपका गूगल ड्राइव का अकाउंट और इसका अकाउंट सेम ही रहे, अलाउ कर देंगे। और तो अब इस पाइथन फाइल के पास, इस कोलैब नोटबुक के पास आपके पूरे डेटा सेट का एक्सेस आ जाएगा, आ गया माउंटेड। उसका यही मतलब है। अब आप उस डेटा के साथ कुछ भी कर सकते हो। सो एक सिंपल सा प्रेजेंटेशन कर देंगे हम ताकि स्टूडेंट्स को आइडिया लग जाए। अब सिंपली यहाँ से फोल्डर को हम ऐसे वो करेंगे, जैसे मैं ड्राइव में था, माई ड्राइव में यहाँ पे CO अंडरस्कोर इंडिया जो मैंने अभी भी इंपोर्ट कराया था यहाँ पे, उसको यहाँ से 3 डॉट हम उसकी पाथ को कॉपी करेंगे। उसके बाद हम इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं, न्यू कोड सेल बना सकते हैं सिंपली। और इस बार हम इंपोर्ट पांडास, एक लाइब्रेरी जिसके थ्रू हम रीड करते हैं कोई भी डेटा सेट को। सिंपली हमारा डेटा सेट लोड हो गया और हम इसमें हम जो भी हमें एनालिसिस करनी है हम कर सकते हैं। अब गूगल ड्राइव हमें क्यों यूज़ करना चाहिए? एक तो आप किसी भी सिस्टम में बैठ के सिंपली विद सेम ईमेल आईडी आप यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा आप डायरेक्ट इसमें मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज इंस्टॉल होती हैं, आपको एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ता। कोई पेपर इंस्टॉल जैसे हम VS कोड पे उसमें करना पड़ता है, हमें कमांड वर्ड में VS कोड यूज़ करने के लिए। उसके अलावा हम डायरेक्ट क्या से डेटा सेट इंपोर्ट करा सकते हैं, हमें स्पेशली डाउनलोड करके कहीं पर लोकल इंपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, कोई नीड नहीं होती। उसके अलावा गूगल क्लाब जो है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर, इसमें कोड स्निपेट्स होते हैं जिससे आपको सिंटैक्स रेडीमेड मिल जाता है, वो काफ़ी सारे आपको कोडिंग का टाइम बचता है।
और कनिष्क भैया थोड़ा सा प्लीज। यस एब्सोल्युटली। सो जैसा भी आप देख सकते हैं, ओके, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है प्रबुद्ध का, व्हाट इज डीएफ? डीएफ एक नॉर्मल वेरिएबल नेम है, डेटा फ्रेम के लिए हम यूजली डीएफ यूज कर लेते हैं। भाई इसके लगा तो यहाँ पे इफ आई राइट एनीथिंग प्रबुद्ध एल्स? एंड प्रबुद्ध.head, बढ़िया। तो भी ये रन होगा सिंपली। वो तो एक वेरिएबल नेम है, कुछ भी रख सकते हैं। वो तो एक नॉर्मल कन्वेंशन है, जैसे जब हम फॉर लूप लिखते हैं तो फॉर आई इन आई क्या होता है? कन्वेंशन। सो दैट इज जस्ट अ नेम दैट वी फॉलो, राइट? सो साहिब, very nice introduction. I got that. Great, Prabhu, great. So Sahib, very nice introduction. In case you have any doubt, students, कि भैया ये क्या है, हमें इतना समझ नहीं आया, हमें थोड़ा आइडिया लग गया पर इतना समझ नहीं आया, so that is also great. बिकॉज साहब एक काम करना, इस नोटबुक की थोड़ी बहुत और चीजें हमें एक बार बतानी है। सबसे पहले हम नाम कैसे देख नोटबुक को? सिंपली यहाँ पे जो भी नाम देना है हमें, यहाँ पे हम जैसे GDSC में सैंपल सिंपली नाम ऐसे नाम दे सकते हैं। इजी। इसके अलावा इसके अंदर मैं एक सेकंड का प्रोजेक्ट खोलता हूँ थोड़ा समझाने के लिए, 1 सेकंड। हाँ, एक अपना कोई पुराना प्रोजेक्ट इनको डिस्प्ले करते हैं अब हम, जस्ट टू शो यू कि एक एक्चुअल प्रोजेक्ट कैसा दिखता है व्हेन यू क्रिएट इट ऑन अ कोलैब नोटबुक। ये है, थोड़ा जूम इन करना स्क्रीन में, 110%, 125% टाइप। 1 सेकंड में करता हूँ, 1 सेकंड। ओके। मैं ये करता हूँ लूडो एक्स। यस, नो वरीज। जैसे हम आप देख रहे हो टेक्स्ट सेल पे ये बोल्ड है, ये ऐसे बोल्ड रखा है, कैपिटल रखा है ऐसे, तो इसके लिए सिंपली हम हैश यूज करेंगे अगर, तो वो ऐसे हो जाता है। अगर हम ये यूज करते हैं कोट तो वो ऐसे हो जाता है। और ये इजी टू लाइक रीडेबल, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट इजी कर देता है कोलैब। साथ में लाइक एक्टिविटीज लिखी हुई है कि कैसे क्या करना है। उसके अलावा कमेंट्स तो बनाने का है ही सिंपल इसमें, और हम ऊपर नीचे कहीं और कोड सेल क्रिएट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा क्रिएट हो गया तो हम इजीली डिलीट कर सकते हैं। हमें कुछ लिखना है, याद आ गया, बाद में याद आएगा कुछ लिखना है हमें, तो ऊपर टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ हम कोड के बाद भी कुछ लिखना है तो यहाँ पे टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इजी रहता है किसी भी बंदे के लिए प्रोग्रामिंग करना है यहाँ पे गूगल क्लाब पे। एब्सोल्युटली। जितनी लाइब्रेरीज आपको चाहिए ऑलरेडी प्री इंपोर्टेड भी हो सकती हैं, तो क्विकली उनका यूज किया जा सकता है। कुछ लाइब्रेरीज जैसे साहिब अगर ऊपर जाना हल्का सा, फर्स्ट फ्यू लाइंस ऑफ योर कोड, आप देखेंगे numpy है, pandas है, matplotlib, cbon, इतनी सारी। भैया ये क्या चीजें हैं? हमने नाम सुना है पर हमें इतनी फंक्शनलिटी पता नहीं है। matplotlib is used to create charts and graphs in your right. Sahib, what is cbon used for? cbon is used for the same thing, but थोड़ा डिजाइन मतलब लाइक cbon से हम उसके अंदर काफी एडिशनल चीजें ऐड कर सकते हैं मैटप्लॉटलिब के साथ, दोनों कंबाइन करके। और जैसे मैटप्लॉट थोड़ी सिंपल है तो cbon थोड़ा उसको डिजाइन दे देती है तो क्रिएटिव बनाने के लिए। एब्सोल्युटली। जैसे मैं नीचे आके दिखाता हूँ, 1 सेकंड। बिल्कुल। मैं थोड़ा सा नीचे एक एग्जांपल मैटप्लॉटलिब का, एक शायद cbon का, तब थोड़ा अच्छे से डिफरेंशिएट हम कर पाएंगे। जैसे ये मैटप्लॉटलिब का सिंपल, इसमें plt यूज करा हमने। मैटप्लॉटलिब का मैंने ऊपर इसको दिया था, स्लाइस किया था कि मैटप्लॉटलिब पर पाइप्लॉट एज plt, एंड जैसे हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया नॉर्मल सिंपल रन टाइम रन plt as you know again एक वेरिएबल नेम है, आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे df था वैसे plt है। वैसे कन्वेंशन है कि plt दे देते हैं। अपग्रेडेड वर्जन कह सकते हैं मैटप्लॉटलिब का। हाँ, cbon। ओके, कंटिन्यू। मैटप्लॉटलिब जो है वो plt के थ्रू मैंने नॉर्मल ग्राफ बनाया सिंपल। अब इसमें मुझे डिटेल्स ऐड करनी है तो मैं नीचे जाता हूँ। cbon आई गेस मैंने इस वाले में नीचे यूज करा मेरा। जैसे मैं cbon के थ्रू cbon डिफरेंट कलर्स या फिर हमें कुछ भी डिटेल्स ऐड करनी है तो हम cbon के थ्रू इजीली ऐड कर सकते हैं एक सिंपल लाइन में। जैसे अब 10 ग्राफ मैंने साथ में बनाए हैं, 10 ग्राफ्स बन सकते हैं, तो मैंने cbon के थ्रू डेट टाइम ऐड कर दिया। इसके लूप मतलब लूप के अंदर सीधा डायरेक्टली मतलब ग्राफ में जो कुछ ऐड करना होता है वो cbon थ्रू इजीली हो जाता है, क्योंकि मैटप्लॉटलिब से आराम, जैसे अब ये है बॉक्स प्लॉट है, वो मैटप्लॉटलिब में नहीं बनता आराम से, बट एसएनएस यूज करके डिफरेंट टाइप का ग्राफ बन जाता है।
थोड़ा क्रिएटिव है, जो जैसे ये ग्राफ और ऊपर का ग्राफ ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट ये थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, वो थोड़ा सिंपल सा है, बस इसका फर्क है। मैटप्लॉट स्टार्टिंग में जब बिगिनर को यूज करता है मैटप्लॉट भी यूज करना चाहिए, इजी रहता है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा आपका हाथ साफ हो जाए, यूज टू हो जाओ, तो उसका सीबंग के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन यूज करके आप उसको अपनी क्रिएटिविटी यूज करके कर सकते हो। Absolutely correct. So जैसे मीत ने भी कहा, it's an upgraded version of Matplotlib. They both work together. Yes. So even if you call it upgraded, they both really work together. So I think collab के लिए भी हमने अब सब कुछ कवर कर लिया, right साहब? कुछ रह तो नहीं गया? Everything is done. Great. So with this now, let's field some questions जो students ने डाले थे, but हम answer नहीं कर पाए थे. So first of all, we have Arshita's questions, which is कि which languages should we know if you want to pursue our career in this field, and how should we start? Very, very good question. Which languages should you know? Step one, Python. Python is very, very important. It is the simplest language to learn, in my opinion. English है. Python is literally English. आपको कोई variables नहीं define करने पड़ते. So it's very, very easy to learn. Get started with that. In fact, next session that we will keep in the coming week will be a detail into Python. So हमारा aim ये रहेगा कि एक event के अंदर ही हम आपको Python से इतना comfortable करा दें कि नेक्स्ट टाइम जब हम उसके बाद इवेंट करें तो आप खुद ही बोल रहे हो हाँ भैया एसएनएस हमें पता है, डीएफ हमें पता है, हम वेरिएबल्स खुद डिफाइन कर लेंगे, एंड दैट इज आवर एम एंड वी विल मेक श्योर कि ये हो पाए. वी हैव डिजाइन्ड द एंटायर करिकुलम इन दिस वे. देन व्हाट लैंग्वेज शुड वी नो एंड हाउ शुड वी स्टार्ट? ओके, पाइथन के लिए आप हमने जैसे कैगल का कोर्स दिखाया, आप उसे फॉलो करें. वेरी मशीन लर्निंग ओरिएंटेड पाइथन है, बिकॉज पाइथन इटसेल्फ इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. उसमें बहुत सारी चीजें हैं. मशीन लर्निंग के लिए आपको उन सब की जरूरत नहीं है, तो आप सीधा कैगल से शुरू करें, आगे बढ़े फील्ड में, एंड क्विकली विद इन आई थिंक 2 to 3 days आप कंफर्टेबल हो जाएंगे. फिर आगे एक्सप्लोर हम करते रहेंगे साथ में. ऑलराइट, let's see what other questions do we have. Okay, Divyansh is saying ki collab notebooks and Jupyter notebooks are similar in functioning. Absolutely correct, Divyansh. Jupyter used to be very, very famous around 2018 2017 जब मैं 12th में था. So one of the first projects that I made was on Jupyter, but with Google now taking over and building collab notebooks, functionalities increase हो गई हैं, and it's become very, very easy to create projects using machine learning. I'm adding something. Yes. Yes. So basically difference क्या है कि जब तुम deep learning करते हो, like TensorFlow use कर रहे हो, तो बहुत सारी dependencies होती हैं जो कि तुम्हारे जैसे Jupyter या Visual Studio में तुम्हें दिक्कत आती है करने में, ठीक है. बट गूगल कोलैब में अगर तुम उसे डायरेक्टली करते हो ना तो वो हो जाता है, बिकॉज उसमें तो प्री बिल्ड है, ठीक है. तो ये सारी चीजें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब तुम आगे बढ़ते हो. तो बहुत सारी चीजें होती है जिनको देखकर तुम्हें अपना प्लेटफॉर्म चुनना होता है कि तुम्हें कहाँ पे कोड करना है. बहुत सारे अभी भी ऐसे इंजीनियर्स हैं जो कि गूगल कोलैब को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, बट आई यूज विजुअल स्टूडियो. So it's depend on you. अगर वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है तो वहां पे बहुत सारी डिपेंडेंसीज होती है, तो पहले वो क्रिएट करके देन उसके बाद आगे बढ़ना होता है, ठीक है. लेकिन गूगल कोलैब में करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है. तो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर मैं डिफरेंस को देखूं तो. एब्सोल्युटली, क्योंकि जब आप काफी बार मेरे साथ ये प्रॉब्लम आती थी स्टार्टिंग में कि पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, पिप इंस्टॉल C1, पिप इंस्टॉल सब कर लिया, अब कुछ चल ही नहीं रहा क्योंकि वो मेरी पाइथन की होम डायरेक्टरी में नहीं है, क्योंकि मेरा डेटा होम डायरेक्टरी में नहीं है. तो कोलैब के साथ ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारा कुछ डायरेक्टली होम डायरेक्टरी में आता है, एंड आपको चिंता नहीं करनी कि यार मेरे पास ये पर्टिकुलर डेटा सेट है नहीं है, ये पर्टिकुलर टूल है नहीं है, राइट. सो गुड क्वेश्चंस यार, गुड क्वेश्चन दिव्यांश. डज एनीबडी हैव एनीथिंग एल्स दे वांट टू ऐड? Attendance form is also shared in the chat, everybody. So please go ahead, fill it, ताकि हमें भी एक रिकॉर्ड रहे, हमारे पास भी डेटा रहे कि कौन कौन आया था हमारे पास और कौन कौन नहीं आया था. So any other questions, anybody? You can unmute and speak as well for a few minutes. Okay. First year को Google internship prepare के लिए. Okay. Very, very interesting question. Being from GDIC, I think it's sort of our responsibility to adhere to this question, if nothing else. फर्स्ट ईयर में इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप यू स्टडी हार्ड. DSA करना बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू वांट टू क्रैक अ जनरल गूगल SD इंटर्नशिप, एंड इफ यू वांट टू क्रैक से गूगल डेटा साइंटिस्ट इंटर्नशिप या गूगल क्लाउड इंटर्नशिप, तो वो अलग है, ठीक है. हम डेटा साइंस की बात करते हैं, पाइथन अच्छे से आनी चाहिए, प्रोजेक्ट्स अच्छे से बिल्ट होने चाहिए आपके. यू शुड हैव गुड एक्सपीरियंस विद योर प्रोजेक्ट्स एज वेल.
एंड आपने जो भी करा हो ना, आप एक एक लाइन एक्सप्लेन कर पाओ. दिस इज समथिंग आई रियली स्ट्रेस ऑन अ लॉट, कि अगर आपके जैसे साहब को भी याद होगा व्हेन ही वाज इंटरव्यूइंग फॉर द टीम, Mohammed, I'll tell you what DSA is. Just give me a few minutes. So, remember, Sahib, what did we stress on the most when we were taking interviews for the team? जैसे कि मतलब कितना अच्छे से हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और मतलब लेकिन आप हमारे चेक करते हैं कि हम कितने डिटरमिन्ड हैं एमएल में, और मतलब कितनी हमारी स्किल्स हैं. एब्सोल्युटली करेक्ट. कि जो भी आपने बनाया है, देखो प्रोजेक्ट्स तो पूरे इंटरनेट पे अवेलेबल है, पर आपने जो भी बनाया आपको समझ आया, इवन इफ यू कॉपीड इट, इट्स ऑल राइट. कॉपी टुवर्ड्स द स्टार्टिंग काफी लोग करते हैं, पर आपको फिर भी समझ में आया. सो जैसे जैसे आप सेकंड ईयर में आते हैं, आपके पास आते हैं गूगल स्टेप इंटर्नशिप्स आती हैं, बहुत लोगों की ऑल ओवर इंडिया लगती हैं गूगल स्टेप इंटर्नशिप्स. एंड कैगल के थ्रू भी काफी लोगों को काफी अवार्ड्स, एक्कोलेड्स एंड रिकॉग्निशन मिलता है, बिकॉज कैगल इटसेल्फ इज ए गूगल प्लेटफॉर्म ओनली, सो इट वर्क्स हैंड इन हैंड. And yes, absolutely, Divyansh. DSA stands for Data Structures and Algorithms. ये basics है computer science का, right? तो इसके अंदर आपके सारे structures आते हैं and how do you deal with them, and उनके base पे interview. Yes, Mom. Would you like to add something? आई एम जस्ट सेइंग कि डीएसए अगर तुम AIML कर रहे हो तो उसके लिए डीएसए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स जो कि डीएसए से ही तुम अचीव कर सकते हो एमएल और एआई में. So any problem solving things will be solved by data structures, and there is lots of problems in ML and AI. And also for Google internship, यार तुम projects बना लेना, सब कुछ कर लेना, but अपना resume बहुत अच्छा बनाना, वरना कोई भी मतलब नई परस्यू करता, भाई तुमने अच्छे अच्छे रिज्यूम मतलब आई मीन प्रोजेक्ट्स बना लिए, बट तुम्हारा शो करने का तरीका अच्छा नहीं है रिज्यूमे में. तुमने सब कुछ डाल दिया, तुमने 2 पेज के बना दिए, तुमने 3 पेज के बना दिए, दैट इज नॉट द थिंग. तुम्हें प्रेजेंट करना आना चाहिए, तो दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट फॉर दिस. एब्सोल्युटली करेक्ट. तो बेसिकली ये होता है कि आपने डेटा स्टोर कर लिया कहीं पे, वो डेटा को रिट्रीव करना, उस पर काम करना, चाहे वो डेटा ग्राफ के अंदर हो, किसी एरे के अंदर हो, दैट इज हाउ इट वर्क्स. सो एवरी फील्ड वर्क्स हैंड इन हैंड. And okay, cool. Moving forward with Daksh's question, will we have a hands-on Kaggle session? Yes. When we dive straight into machine learning, अभी next होगा Python पे, क्योंकि we know many students, many of you may remember, हमने पहले एक फॉर्म निकाला था जिसके अंदर we asked students कि Python में आप comfortable हो या do you need some support on this? So many students said कि भैया हमने करा है थोड़ा explore, but we need some support. So firstly, we will explore Python properly. Then we will go to machine learning, where we will explore Kaggle properly. And उसके बाद we have a surprise event for you as well, जहाँ पे आपके जितने भी इंडस्ट्री लेवल के डाउट्स है, जैसे गूगल के बारे में क्वेश्चंस हो गए, जैसे अमेजोन के बारे में क्वेश्चंस हो गए, उनको फील्ड करने के लिए हमने स्पेशली कुछ लोगों से रिक्वेस्ट करी है. सो दे विल आल्सो बी जॉइनिंग. सो स्टे ट्यून्ड विद द एंटायर प्रोग्राम. अभी के लिए, if you really are very enthusiastic about Kaggle and you want to explore this by the weekend, just go to kaggle.com/learn. And you will see all the courses in the format जिसमें आपको उन्हें करना चाहिए. तो पहले Python दिखेगा, फिर machine learning, फिर pandas, ऐसे दिखेगा आपको, and आप शुरू कर दो. Very straightforward courses, probably 2-3 hours at max लगेगा, but you will understand things nicely. So all the best with that, and great question, Daksh. Any other person would like to ask us anything? You can unmute and start talking. And I'm also sorry अगर मैंने किसी का नाम गलत pronounce करा हो. I'm really not good with names, so I'm really sorry for that. Okay, could you talk about the sorry please okay bolo. No problem, Divyansh. Could you talk about the various kind of projects that we can build through machine learning? Mamita, take it away. Okay, so अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तो फर्स्टली यू मस्ट नो कि मशीन लर्निंग क्या है, उसमें कितने टाइप्स के मशीन लर्निंग होते हैं, उसमें कितने टाइप्स के एल्गोरिथम्स होते हैं. जैसे कि मैंने कैगल में दिखाया कि वहाँ पे तुम्हें अगर रैंडम फॉरेस्ट चाहिए तो उस टाइप का तुम्हें बनाना है, तो तुम वहां से ले सकते हो, वहां से आइडिया ले सकते हो, वहां से वहां पर जाके तुम अपना प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हो. तो सबसे पहले तुम्हें पहले तो ML पता होना चाहिए, देन उसके बाद उसके टाइप्स पता होने चाहिए, फिर उसके अंदर तुम्हें जो एल्गोरिथम है उसके बारे में पता होना चाहिए कि उसका पाथवे कैसा जा रहा है, तुम्हें उसको करना कैसे है, उसमें क्या अलग है दूसरी चीज से. अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूँ और रिग्रेशन की बात करूँ तो दोनों में क्या डिफरेंस है, तो वो सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए. रिग्रेशन वगैरह की बात की जाए तो तुम्हें थोड़ा बेसिक मैथ्स भी पता होना चाहिए. तो देयर इज समथिंग कि तुम्हें पहले थ्योरी थोड़ी सी पता होगी, तो जाके तुम अगर कोड करोगे तो वो चीज तुम्हारे लिए ज्यादा इजी रहेगा और दिक्कत नहीं होगी. तो
उन्हीं चीजों पर तुम्हारे सारे प्रेडिक्शन बेस्ड करते हैं कि अगर मैं सुपरवाइज लर्निंग से की अप्रोच से कुछ कर रहा हूँ तो उसमें कौन से टाइप के आएंगे, अगर मैं अनसुपरवाइज में कर रहा हूँ तो उसमें कौन से टाइप के आएंगे, और मैं किस चीज को करने के लिए कौन सी चीज परस्यू करूं। तो वो सब जानने के लिए पहले तुम्हें थ्योरी पता होनी चाहिए। देन उसके बाद तुम अपने प्रोजेक्ट पर जाओ कि अगर लाइक बेसिक अगर प्रोजेक्ट की बात की जाए एमएल में, तो तुम प्राइस प्रेडिक्शन अभी जैसे इन फ्यूचर, जैसे हम पाइथन में पाइथन का जो इंट्रो कर रहे थे, जो हमने कैगल पे कोर्स देखा, उसमें मैं एक चीज बताना भूल गई कि जब तुम पूरा कोर्स कर लोगे, लाइक तुमने पाइथन का स्टार्टिंग का करा और एंड में तुम्हें एक मतलब आई मीन एक एक्सरसाइज मिलेगी जिसको करने के बाद तुम आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद तुम्हें सर्टिफिकेट मिलते हैं। तो वो सारे एक्सरसाइज में तुम्हारे प्रोजेक्ट्स इन द थर्ड सेशन वी विल गिव, राइट कनिष्क? यस, तो इट विल बी आल्सो अ चैलेंज। तो सरप्राइज को मैंने पहले ही बता दिया, सॉरी। It's fine, you know, ऐसे students enthusiastic रहते हैं, I believe, because we have almost 45 students here जो हमारे साथ start से बने हुए हैं. Make sure to fill the attendance for everyone. We are still getting a lesser number of responses than the people in the meet, so make sure to fill that. दिव्यांश, तुम बेसिकली पहले क्लासिफिकेशन रिग्रेशन वगैरह से स्टार्ट करो, देन उसके बाद डाइव करना जो एल्गोरिथम्स है दूसरी, ठीक है। तो Right. बस इतना ही। In fact, Divyansh, पहले तो जाओ, start with Kaggle, explore a little bit of Python, make sure your Python is, you're comfortable with it. उसके बाद जैसे ममता ने वर्ड्स यूज किए, रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट, KNN एक और चीज होती है उसमें. So ये सब algorithms है, and we will be covering them very very soon within maybe the next week or the weeks that we have planned this. So हम भी इसमें deep dive करेंगे, अच्छे से explain करेंगे everything from the beginning. And so don't worry at all. Projects build करना, जैसे there are a lot of heart disease models बन सकते हैं आपके और भी तरीके, आपके कैंसर प्रिडिक्शन मॉडल्स बन जाते हैं. कैगल के अंदर ही आपको एक कोर्स मिलेगा जिसके अंदर वो पेरिस के अंदर हाउसेस के प्राइस प्रिडिक्शंस के मॉडल बनवाएंगे. सो मॉडल्स आप किसी भी चीज का बना सकते हो, ठीक है. So it ranges a lot, but for a beginner, I believe that disease predictions and house price prediction, ये सारे models are very very nice, and they are industry level पे use भी होते हैं. So it's not like जो आपने बनाया वो कभी waste होगा, वो आपको सीखने को ही मिलेगा उससे कुछ ना कुछ. Good question, keep it up. Let's see. Any other questions, anybody? Please don't hesitate. मुझे कुछ ऐड करना है. हेलो, Yes. जीडीएससी को ज्वाइन कैसे करें ये बताना. Okay, so GDSC के recruitments are, they happen once maybe twice a year. So बहुत recently outreach team के लिए हमने recruit किया था students को. To join GDSC as a community member, आप बस हमारे साथ active रहिए. अभी एक काम करते हैं साहिब, we have also created a separate group for students, WhatsApp group, right? So उसका link chat में share कर देते हैं, so that all the students who want to learn, who want to be a part of the community, they can also join the group, and वहाँ पे आप अपने Kaggle related questions, machine learning related questions वहाँ पे post कर सकते हैं. So if we see students जो बहुत active हैं, there is a chance कि हम उन्हें community में involved रखें and उनको introduce करते रहे अपने साथ हर technology के साथ. And as a member जब आप आओगे तो वो recruitments के साथ ही आपको हम enroll कर लेंगे, ठीक है. Any resources for covering theory part of ML, Kaggle के अंदर the second course that you will follow is called, Saib, let's share this in the chat of this meet as well. Okay, cool. So anyway, as I was talking about any resources for covering machine learning, so go to Kaggle. The second course that you will see talks a lot about the theory of machine learning, supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning, ये सब बहुत है. And as Agam Bhaiya has also shared the community dev page for GDSC GTBIT, you want to become a community member, प्लीज ज्वाइन द कम्युनिटी पेज. हमारे जो भी अपडेट्स हैं आपको वाया मेल आते रहेंगे. हमारा इंस्टाग्राम भी आप फॉलो कर सकते हैं, GDSC GTBIT हैंडल का नाम है, एंड यू विल बी गेटिंग ऑल द डिटेल्स फ्रॉम देयर अबाउट आवर कम्युनिटी एंड व्हाट द ग्लोबल गूगल कम्युनिटी इज डूइंग फॉर स्टूडेंट्स. अंडरस्टूड? कुछ हमने मिस तो नहीं किया आपके क्वेश्चन में? नहीं. एक बात बताओ, एज अ मेंबर कैसे ज्वाइन करें? एज अ मेंबर के लिए नेक्स्ट ओके, तो एज अ मेंबर ज्वाइन करने के लिए आपको उस कम्युनिटी में एक्टिव रहना है. जैसे ही नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यूज होंगे आपको पता चल जाएगा एंड आप आके इंटरव्यू कर सकते हैं. और आउटरीच के अंदर क्या मतलब कुछ है बताना एक बारी.
आउटरीच टीम के लिए इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टीम, वेरी क्रूशियल टीम ऑफ जीडीएससी। जो भी आप देखते हैं स्टूडेंट्स आपकी क्लासेस में आके अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं या फिर जो व्हाट्सएप पे आपके साथ लिंक्स शेयर कर रहे हैं, दे आर ऑल पार्ट ऑफ द आउटरीच टीम। सो दे मेक श्योर कि जो भी हमारे मैसेजेस हैं वो सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचे। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं आउटरीच टीम के बारे में। ओके ओके, ग्रेट। सो इसी तरीके से बहुत सारी और टीम्स हैं, हम सारे मशीन लर्निंग टीम का पार्ट है। And GDSC community page is shared in the chat, everybody. Make sure to follow us, make sure to join us as a community member. Chat link is also shared in the chat, the WhatsApp chat. तो यहाँ पर भी हम आपको details, resources and questions field करते रहेंगे। Next session की info भी इसी पे आएगी, वो most probably offline ही रखेंगे to make sure कि सारे participate कर पाए अच्छे से and questions भी और अच्छे से पूछ पाए। Anybody, any other questions? So looks like there are no other questions. So I'd say let's wrap up करते हैं। ठीक है। गाइस जिसने फॉर्म नहीं भरा अटेंडेंस का प्लीज भर दो, फिल कर दो उसको। 3 links have been shared so far. Attendance का form very important. Community page जहाँ से updates आएंगे from global GDG community. And third है WhatsApp group. I think students have already started joining the WhatsApp group. So that's great. Really happy to see all the students. So that's all. Thank you so much everybody for joining. हाँ जी हरमीत। इंटर्नशिप लाइक फर्स्ट ईयर में कैसे, मतलब कैसे स्टार्ट करना है एंड ऑल। Mamita, why don't you take this question? तो अगर अभी तुम फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट तो अपना बेसिक तैयार रखो, प्रोजेक्ट बनाओ। जब प्रोजेक्ट बनेंगे तो अपने आप तुम्हारी रिज्यूमे सिलेक्ट होगी तो हाँ, पहली बार में यार नहीं मिलता इंटर्नशिप, ऐसा नहीं है कि रिजेक्शन नहीं मिलते, रिजेक्शन मिलेंगे, बट देयर इज 10 में से 1 में तो चांस मिलता है। ठीक है, अगर तुम में कैपेबिलिटी है तो तुम आराम से उस चीज को क्रैक कर लोगे। अभी नहीं, 6 महीने बाद भी 9 महीने बाद तुम्हें वो चीज मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अभी स्टार्ट करोगे तो अभी होगा। प्रोजेक्ट्स बनाओ और उसके बाद अच्छा रिज्यूमे बनाओ और अप्लाई कर दो। एब्सोल्युटली, इंटर्नशिप पे जाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। वो इंटरव्यू लेंगे, आपका 100% इंटरव्यू लेंगे एंड वहां पे आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी होगी कि आप उन्हें इंप्रेस करो अपनी स्किल्स के साथ एंड अपनी नॉलेज के साथ। One more thing I want to add. Okay, so Harmeet, basically there was an interview जब मतलब मेरा MLAI था, बट ML इंटर्नशिप था, बट मेरे से DS के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो DS इज समथिंग इम्पोर्टेंट कि तुम चाहे एंड्रॉइड हो, चाहे वेब हो, चाहे ML हो, DS इज इम्पोर्टेंट। तो DS बेस्ट रखो अपनी। ठीक है, तो यही एक चीज इम्पोर्टेंट है। We need to keep a hold on DS also. यस, फर्स्ट ईयर से DS पे होल्ड रखोगे तो 4th ईयर तक आते आते बहुत अच्छे इंजीनियर बन जाओगे। एब्सोल्युटली यार, DS तो वैसे कंप्यूटर बना कैसे, वो तो वही है ना। अब आपको अगर डेटा स्टोर करने के बारे में ठीक से पता है तभी तो आप डेटा पे काम करने के बारे में ठीक से बता पाओगे। It's just like that. But I also feel कि यार it's all about how much effort you put in. किसी को 6 months लगते हैं, किसी को 3 months लगते हैं, किसी को 8 months लगते हैं। Just depends कि आप कितना टाइम पुट कर रहे हो। काफी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जिनकी स्ट्रीम ही AIML है, तो उनके लिए तो इट्स लाइक अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी क्योंकि वो पढ़ने ही वही वाले हैं। सो व्हाई नॉट स्टार्ट ऑलरेडी। जैसे साहिब इज आल्सो हियर, ही इज अ स्ट्राइकिंग एग्जांपल कि अब इसी फील्ड में हूं मैं, व्हाई शुडंट आई स्टार्ट ऑलरेडी, राइट? सो दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ गुड शुड माय कैलकुलस बी? यू शुड नो बेसिक्स। इट्स नॉट कि आपको पूरा प्रो बनना है, यू शुड गेट 120 on 120 in JEE mains or something like that. No. अरे इसमें कैलकुलेशंस नहीं करनी, कैलकुलेशंस नहीं करनी आपको, बट यू नो कि होता क्या है, कैसे होता है। ठीक है, कैलकुलस इज इम्पोर्टेंट, बट अब तुम्हें डायरेक्टली यहाँ पे पेन पेपर नहीं पकड़ाया जाएगा कि ये लो क्वेश्चन और सॉल्व करो। ओके, सो जस्ट तुम्हें बेसिक पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन आया अभी भैया। Let's see. Some people say C++ में DS से करो. So how should we move forward? Okay, good question. So जैसे जब मैंने DS से practicing करी थी शुरू, so C++ में ही करी थी. The reason for that is that C++ compared to Python is a faster language because Python has a lot of abstract things. जैसे आपको उसमें data type define नहीं करना पड़ता, आपको उसके अंदर looping के वक्त भी it's very easy, range function इतनी आसानी से नहीं मिलता उसमें.
That is why I say कि C++ में DSA करो. But I've also seen many students practice DSA in Python as well. ठीक है. एंड अगर आपकी एक, जैसे मेरी फर्स्ट लैंग्वेज इज आल्सो पाइथन, अगर आपकी एक लैंग्वेज पे ग्रिप अच्छी है, शिफ्ट करने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता. आपको वेरिएबल्स क्रिएट करने आते हैं, आपको प्रॉपर्ली लूप्स लिखने आते हैं, लॉजिक बिल्डिंग अगर आपकी ठीक है, आप लैंग्वेजेस पे जंप कर सकते हो आराम से. सो एक्सप्लोर जरूर करो. अगर आप फर्स्ट सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में भी हो, एक्सप्लोर करो लैंग्वेजेस को एंड यू विल एंजॉय इट अ लॉट, प्रोवाइडेड यू अंडरस्टैंड एंड पुट इन सम एफर्ट. दैट्स ऑल. And we have one more question. यस बताओ. एक्चुअली एक सेकेंड, मुझे इस चीज पे कुछ ऐड करना है. C++ से अगर DSA कर रहे हो तो वो पाइथन आई मीन ML के लिए भी यूज होती है, तो तुम डायरेक्टली C++ कर लो, उससे DSA भी कर लो, ML भी कर लो, दैट इज गुड ऑब्वियसली. कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में हेल्प करेगी. Absolutely. Carry on. Harmeet, really sorry to interrupt, yaar. Please ask your question. I was thinking कि अभी आपने बोला ना कि पाइथन में होल्ड होनी चाहिए, तो लाइक पाइथन एंड जावा सेम लेवल पे ही आते हैं, तो अगर जावा मैं पाइथन ना करके अपना प्रेफर्ड लैंग्वेज जावा रखूं तो उसमें आई डोंट सी देयर इज कि कोई लॉस है. ठीक है. पाइथन इज अ वेरी डिटेल ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज, राइट. सो इसके अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि व्हेन यू एक्सप्लोर जावा, राइट, यू गेट अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम एंड्रॉइड डेवलपर्स एज वेल. सो अगर आपका इंटरेस्ट उस तरफ है, डेफिनेटली एक्सप्लोर करो, क्योंकि पाइथन पे तो फिर आप आराम से शिफ्ट कर जाओगे. लैंग्वेज इज नॉट द इशू, लॉजिक बिल्डिंग एंड कॉन्सेप्ट समझना इज वेयर आवर फोकस शुड बी. लैंग्वेज तो यूं आती है, इट्स वेरी वेरी सिंपल. एंड जैसे जैसे प्रभुद ने भी मेंशन किया कि C++ की लाइब्रेरी उतनी सफिशिएंट है फॉर मशीन लर्निंग एज पाइथन हैज. मोहिता, व्हाई डोंट यू फील दिस क्वेश्चन? Okay, so यार C++ में there are lots of things जो ML के लिए करी गई हैं. Like अगर मैं कंप्यूटर विजन की बात करूं, कंप्यूटर विजन एक also a field, like जैसे डीप लर्निंग है वैसे कंप्यूटर विजन भी है, जैसे मैं कंप्यूटर विजन इंटर्न हूं. तो यार वो ना C++ में बहुत इजीली होता है कंपेयर टू पाइथन. ठीक है, क्योंकि मुझे मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स. जब मैं रोबोटिक्स की बात करती हूँ तो मुझे हार्डवेयर से जोड़ना होता है, तो यू ऑलरेडी नो कि आर्डिनो वगैरह में C++ की कोडिंग होती है. तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स कि मैं C++, इवन आई हैव अ फ्रेंड जो C++ से मशीन लर्निंग करता था. ठीक है, तो देयर इज नथिंग कि तुम C++ से नहीं कर सकते, बट पाइथन इज इजियर एंड इट हैज प्री-बिल्ट आई मीन लाइब्रेरीज, तो इजी रहता है पाइथन. बट अगर तुम C++ से करना चाहते हो तो मिल जाएगा, हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, बट यू कैन कैरी ऑन विद दैट. All right, Harmeet, we hope कि okay, 2 more questions. Then C++ and Python साथ में करेंगे तो confusion नहीं होगी, because I want to start from zero. If you want to start from zero, तो confusion नहीं होगी, because अगर आप एक लैंग्वेज में वेरिएबल क्रिएट करना सीख रहे हो तो दूसरे में जब आप सीखोगे you'll be like अच्छा हाँ ये तो वैसे ही है, and you'll move forward. Pick any language that you feel कि हाँ यार I think I can start with this. Don't wait thinking कि कौन सी लैंग्वेज से शुरू करूँ. Just pick one and start. हमने पाइथन प्रोवाइड करा एज अ रिसोर्स. आप आज रात को इसे एक्सप्लोर करो बैठ के, barely 2 hours की चीज है, you will enjoy it. I'm telling you, Python is a very easy language, you will enjoy it. And एक बार बेस बन गया, then C++ will also be very very easy for you. दोनों साथ में करना, कंफ्यूजन तो फॉर श्योर आएगा ना, लाइक दोनों पे एक साथ ही होल्ड करना. मैं कुछ बताऊंगी इसके लिए. मैंने जावा और पाइथन एक साथ ट्राई की थी DSA के लिए. मैं DSA पाइथन और जावा दोनों में ट्राई करती थी, तो हाँ मेरे को बहुत कंफ्यूजन होती थी. बट जब तुम्हें यार फंक्शन पता है ना, तो यार सिंटेक्स का इतना फर्क नहीं पड़ता. तुम एक बार करना शुरू करोगे ना तो होती जाएगी. स्टार्टिंग में कंफ्यूजन होती है ऑब्वियसली यार, बट धीरे धीरे ना अगर तुम करना चाहते हो तो पेशेंस के साथ ही चीज हो पाएगी. बट आई वुड से कि पहले तुम एक चीज कर लो, देन तुम दूसरे पे लैंड करो. नहीं तो दैट्स योर चॉइस, हर एक की अपनी प्रेफरेंस है. Absolutely. So let's see. So Python would be better solution to ML than C++, giving it is easier to understand ML through Python. Absolutely correct, Daksh. Thank you so much for summing this up. क्योंकि जब डेटा वेटा पे काम करना होता है, it takes a lot of time to understand what you are doing. अब अगर आप उसमें syntax errors और वही सब ठीक कर रहे हो, so that wastes your important time.
which is why we stress कि Python करनी है तो machine learning के साथ combine करके करो. You will quickly run through your career with this, right? Thank you so much for all these questions, guys. We really appreciate this. Yes, Divyansh. So with this, I think we should wrap it up. अगर आपकी कोई और questions हैं, आप उन्हें WhatsApp पे भी भेज सकते हैं. We've created a group only for you guys. आप उसे join कीजिए. आप भेजिए उस पे हमारे को questions and all of us will collectively as a community answer all your questions. So thank you so much for joining, everyone. It was a delight to conduct this session. And थोड़ा postpone करना पड़ा for students as well because many of them told us कि भैया थोड़ा हमें भी time चाहिए to join and participate properly. I would also like to thank Sahibpreet Singh and Mamita Pal for being such active facilitators. Thank you, Ganesh. Thank you. Amazing. So we will be seeing all the students for all their enthusiasm and all, keeping the spirit of the Explore ML campaign up. So that's all. I hope आप सबने community dev का page explore कर लिया, Kaggle explore कर लिया हमारे साथ. Any doubts you can ask in the group and attendance form भी I hope आप सबने fill कर दिया. So thank you so much everybody for joining. Thank you so much to the management team for handling the streaming and external supports. And all the best everyone. Hope to see you all very soon exploring more about machine learning and Python. Thank you.